Hello, my beautiful souls. Welcome or welcome back. I hope you all doing great और आप जहाँ पे भी हो you are into your healing journey. So today's topic is all about their current feelings for you. Think about a person. ये कोई भी person हो सकते हैं, romantic, platonic, anybody. आप उनके बारे में सोचो और ये उनकी current feelings हैं आपके लिए and हम लोग उनसे मैसेजेस भी चैनल करेंगे और जो भी मैसेजेस स्पिरिट आपके लिए कन्वे करना चाहेंगे हम उन सबको चैनल करेंगे. सो फॉर पाइल सिलेक्शन वी हैव 3 piles, pile number 1, pile number 2 and pile number 3. Whatever resonates with you, you can select that pile, and yes, I will meet you in your reading. Hello, pile number 1. If you chose this picture, then this is your reading. So let's start with all the positivity, with all the goodness. Let's just start and see the person in your mind, unki true feelings kya hai aapke liye, and their messages for you, everything. Pile number 1, their person. Okay. Pile number 1. Thank you, Spirit. Please connect with me. Thank you so much. Their current feelings for them. Their current feelings for them. Their current feelings for them. For pile number 1. Okay. So let's start with your reading. So we have the Hierophant. Okay. So Hierophant really shows me that कि this person might be somebody जो आपसे एज में बड़े हैं. They might be somebody जो काफ़ी authoritative position पे हैं. ये हो सकता है कि this person is your fiance. आप इनके साथ शादी करना चाहते हो और vice versa. But I can see that strongly their current feelings are something very promising for you. I feel that अगर आपका कोई भी romantic connection है, अगर आपका कोई भी like related to love relationship का matter है और टॉपिक है, तो आई कैन स्ट्रांगली सी कि कहीं ना कहीं दिस पर्सन हैज़ वेरी प्रॉमिसिंग फीलिंग्स टूवर्ड्स यू. दे रियली वांटेड टू डू मैरिज विद यू. दे रियली वांटेड टू सी, दे आर रियली सीइंग अ फ्यूचर विद यू. आई एम सीइंग दैट कि कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक बहुत ज़्यादा एक बहुत अच्छी इंटेंशंस रखते हैं. ये आपके साथ एक अच्छा फ्यूचर को देखते हैं और ऑल्सो दे लव कि अगर आप उनके साथ अपने लाइफ को आगे लेके जाएं. सो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव स्टार्ट. आई कैन सी दैट एंड येस दिस इज़ अ 50-50. लाइक व्हाट यू रियली फील्स वो कहीं ना कहीं ये भी फील कर सकते हैं. yes, with the Knight of Cups, this is definitely a very romantic पर्सन. दिस इज़ अ वेरी रोमांटिक. उनके फीलिंग्स आपके लिए बहुत रोमांटिक है. आई कैन सी दैट वो अपना ऑफर, अपने इमोशंस को आपकी तरफ डाइवर्ट करना चाहते हैं. वो आप ऑफर करना चाहते हैं इवन अपने इमोशंस को. And I can see that strongly they really have that strong commitment and intentions towards you. और ये commitment भी ऐसी नहीं है like which is so temporary. It's a long term commitment. They have a very strong feelings towards you. अगर ये आप करियर या कोई प्लेटोनिक रिलेशनशिप में देख रहे हो या कोई ऐसा बॉन्ड देख रहे हो विच इज़ नॉट इनटू लव इंटरेस्ट, बट आई कैन सी दैट स्ट्रांगली कि उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है, उसमें बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि कल को वो आपका जो भी रिलेशनशिप है दैट विल कन्वर्ट इनटू रोमांटिक रिलेशनशिप. एंड आई कैन सी दैट स्ट्रांगली उसमें एक चेंज आने की काफ़ी संभावना है कि वो कल को बहुत ज़्यादा रोमांटिकली कन्वर्ट हो जाएगा. फॉर सम ऑफ यू अगर आप कोई अरेंज मैरिज के लिए देख रहे हो, सो येस योर पर्सन विल हैव दैट फीलिंग्स फॉर यू कि वो उनके पास एक वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है. वो शायद उसको ज़्यादा शो ना कर रहे हों बट दे हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स टूवर्ड्स यू. 7 of cups, I can see so much of feelings, not so little. I mean they are showing only one cup, but they have a extreme romantic feelings towards you. I can see that strongly कि ये जो भी person है ये बहुत ज़्यादा romantic है. They have so much of so much of things to do with you. They have so much of deep feelings. This is also emotional, physical and sensual feelings for you. And I can see that strongly कि वो उसको अभी थोड़ा hide कर रहे हैं because of their, I think your situation and everything. अभी आप जिस भी stage पे हो अपनी life के और जिस भी स्टेज ऑफ रिलेशनशिप पे हो, वो थोड़ा सा उस चीज़ को they are trying to hide it, but they have so much of things, they have so much of cups to offer to you. And they have some this energy is little bit of sexual, like something are vocalized and something are literally sexual. I can see that strongly. And this is very
this is very romantic. This is like they really want a time, they really want a time to spend with you, you know. वो अपनी feelings को थोड़ा hide कर रहे हैं अभी, but there is something else for sure. Yes. और उनको काफ़ी प्रॉब्लम आती है. Okay. उनको काफ़ी प्रॉब्लम आती है टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, टू एक्सप्रेस व्हाट दे ऑनेस्टली हैव इनसाइड देयर, यू नो. और उनको काफ़ी करेज और काफ़ी हिम्मत जुटानी पड़ती है आपके सामने आने के लिए, आपके सामने इवन यू नो कन्फेस करने के लिए. दिस पर्सन इज माइट शाई टूवर्ड्स यू, दिस पर्सन इज माइट यू नो हैव सो मच ऑफ थिंग्स टूवर्ड्स यू टू से, बट उनके पास उतनी हिम्मत नहीं है. एंड आई कैन सी दैट स्ट्रांगली कि दिस पर्सन, आप लोगों का थोड़ा एज गैप भी हो सकता है, और दिस इज़ फॉर वेरी स्पेसिफिक पीपल्स. बट अगर एज गैप नहीं है, सो दिस पर्सन इज़ वेरी मेच्योर, और ये काफ़ी यू नो बहुत जेन्युइन पर्सन है. ये लाइक यू नो टाइम से पहले कोई चीज़ गलत करते नहीं है, और ये यू नो हर चीज़ को डिवाइन टाइमिंग पे करने पे बिलीव करते हैं. सॉरी, आई डोंट नो वाई, बट बाहर बहुत ज़्यादा साउंड आने लग गया रैंडमली. पता नहीं, बाहर शायद कोई इवेंट चल रहा है और समथिंग, बट आई एम सो सॉरी फॉर दैट. बट आई कैन सी दैट स्ट्रांगली विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स कि उनको काफ़ी हिम्मत जुटानी पड़ती है वो चीज़ भी करने के लिए. सो दिस पर्सन, हो सकता है इनकी परवरिश काफ़ी यू नो लाइक वेरी कंजर्वेटिव फैमिली में, और दे आर लिविंग इन, और मे बी आप जिस सिचुएशन में अभी, मे बी यू आर इन टू योर जॉब, और हो सकता है आप यू आर यू नो इन टू योर अरेंज मैरिज सिचुएशन, तो उसमें भी उनको काफ़ी हिम्मत जुटानी पड़ती है टू say a little bit words. But I can see with time you will assume कि they are a very romantic person. And yes, this is a very mature individual. बहुत सारे लोगों की अरेंज मैरिज सिचुएशन हो सकती है, और बहुत सारे लोगों की ये दिस माइट बी a very love marriage situation, but I can see that ये कोई भी situation है, इसमें that person you are thinking about have true feelings towards you. And also this might be अगर ये relationship आपका romantically नहीं है, so ये person आपको express नहीं करते, but इनके आपके प्रति बहुत सारी फीलिंग्स है, और ये बहुत अच्छी इंटेंशन रखते हैं. ये आप यू नो दे प्रे कि आप अपनी लाइफ में ग्रो करो, दे प्रे कि आप भी अपनी लाइफ में इवॉल्व हो, दे प्रे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना है. दे प्रोवाइड ऑल दी प्रोटेक्शन, शेल्टर, और ये अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि आपको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाएँ, विच इज़ वेरी प्योर. आई कैन सी दैट. येस, दे हैव लाइक वेरी यू नो लाइक अ फादर protect their children's kind of energy. I'm not saying like that, but I can see they also have that intentions कि कल को अगर आप romantically involve हो, so they have intentions कि कल को this you know you will be the father or the mother of their children's. So that is so pure, and that is so genuine also. And I can see that this is not like कि बहुत जल्दी, they don't believe in जल्दबाजी. They are just like कि आप अपने सही टाइम पे सही डिसीजन लो, और अपनी कंसेंट से सब कुछ हो. यहाँ पे वो कोई भी चीज़ आपके कंसेंट के विरुद्ध नहीं करना चाहते. I can see that they are doing everything with so much of purity, with so much of positivity with you. And I can see that strongly they are fully involved with you. उनके दिमाग में कोई और नहीं है. They are very dedicated, very devoted towards you. I can see that strongly. This person does not show their true colors, but they are a very romantic individual. Yes, हो सकता है कि उनको कभी मौका ना मिला हो, they can't able to, और उनको हिम्मत भी ना हो to you know show their true feelings, but there are so much to say to you. My God, I'm so sorry. pile number 1, इतना ज़्यादा साउंड आ रहा है. Pile number 1. Yes, internally I can see that कि this person is a very loud personality. With time, जब आपका थोड़ा सा you know you will, अगर ये romantically involve है, अगर आपका you will you know proceed further, you will see कि this person is totally different individual. जैसा मैं सोच रही थी, this is not like that. They are a very sweet, very you know like genuine individual. I can see that strongly. Which is so sweet. Yes, which is so sweet. I can see that strongly. एंड येस, हो सकता है ये आपके बॉस हों, हो सकता है आपके टीचर हों, ये हो सकता है फॉर सम ऑफ यू आपके क्लासमेट हो, बट आई कैन सी दैट यहाँ पे सबकी संभावनाएं बन रही हैं, और आपके एम्प्लॉय और समथिंग एल्स, आई कैन सी दैट ये हो सकते हैं. बट ये जो भी हैं, दे यू हैव अ लिटिल एज गैप, और यू नो लाइक यू मे बी अ डिफरेंट कास्ट कम्युनिटी बैकग्राउंड के हो सकते हैं, बट मैं एज गैप ज़्यादा प्रिडिक्ट कर पा रही हूँ. सो येस, देयर ट्रू फीलिंग्स फॉर पाइल नंबर 1. और ये हो सकता है कि आपके क्रश भी हो सकता है. दिस पर्सन इज़ वेरी अट्रैक्टिव, आई मस्ट से. दिस पर्सन हैज़ वेरी यू नो
प्रोमिनेंट फीचर्स, ये अपनी एज से ज़्यादा यंग दिख सकते हैं, ये अपनी ऐसा लग ही नहीं सकता कि ये इस अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हों, ऐसे हैं पर्सन. एंड यू डोंट एक्सपेक्ट कि ये पर्सन बाद में ऐसे निकलेंगे, इतने रोमांटिक, इतने लाइक यूथफुल निकलेंगे. एंड नंबर 1, पर्सन इन देयर माइंड, उनकी ट्रू फीलिंग्स. बाय नंबर 1, ट्रू फीलिंग्स. ओके, लेट्स जस्ट टेक दिस. So we have soul. I told you with the 10 of wands and with the emperor कि this person is fully connect with you, this person is fully devoted towards you. इनके दिमाग में कोई और है ही नहीं, इनके दिमाग में कोई भी नहीं है, ओनली आप हो. आई कैन सी दैट स्ट्रांगली. इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता बाकी लोग क्या सोचते हैं. यस, ये थोड़े से वो है कि दे हो सकता है इनकी सोसाइटी में काफ़ी रिस्पेक्टेबल स्टेटस हो. सो ये कोशिश करते हैं कि वो रिस्पेक्टेबल स्टेटस को वो ख़राब ना करें. और हो सकता है कि फॉर सम ऑफ यू इनकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत वेल्दी हो, तो ये कोशिश करते हैं कि उस पूरे स्टेटस को ख़राब ना करें, उस पूरे स्टेटस को ख़राब करे बिना दे डू एवरीथिंग. सो यहाँ पे एक बहुत प्योर और ट्रू जेन्युइन फीलिंग्स मुझे दिख रही है. ओके, सो रिमार्केबल, नोटिस एवरीथिंग रिमार्केबल अबाउट योर रिलेशनशिप. डेफिनेटली वो आपकी हर छोटी से बड़ी चीज़ को नोटिस करते होंगे. वो बहुत अच्छे ऑब्जर्वर, आई कैन सी दैट स्ट्रांगली. जो भी हैं बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वर है, वो आपकी छोटी छोटी माइनर डिटेल्स को ध्यान रखते होंगे. द वे यू सी द वर्ल्ड, द व्हाट यू लाइक, व्हाट यू रियली लव इन योर फूड एंड एवरीथिंग. आई कैन सी दैट स्ट्रांगली कि वो हर एक छोटी छोटी चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान रखते होंगे और बहुत ज़्यादा उस चीज़ पे ध्यान देते होंगे कि आपको वो सब कुछ प्रोवाइड करे, कई बार डायरेक्टली एंड कई बार इनडायरेक्टली. बट इनके इंटेंशंस आर वेरी प्योर कि आपको हर चीज़ मिले, आपको हर चीज़ प्रोवाइड हो. एंड यस, कई बार ये डायरेक्टली भी बोल देते हैं, बट समटाइम्स दे डू थ्रू समबडी एल्स ऑल्सो. ग्रैटिट्यूड, दे आर वेरी ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स यू. इनकी इंटेंशंस बहुत अच्छी है एंड आई कैन सी दैट स्ट्रांगली कि ये बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड भी करते हैं. इवन आई रियली रिकमेंड यू कि आप भी ग्रैटिट्यूड करें फॉर दिस पर्सन. दिस पर्सन इज रियली 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 हैव गुड इंटेंशंस टूवर्ड्स यू. हार्ट, oh my god, soul, heart. I can see that कि इनका दिल, like I don't know, this is so I feel filmy to say, but इनका दिल आपके लिए काफ़ी धड़कता है. इनका दिल is like कि they really have that pure genuine feelings towards you. और ये पूरी like when you close जब आप इनके पास आते हो, इनका दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लग जाता है. इनका दिल बहुत तेज़ी से it start beating. ओके, सो आई एम स्ट्रांगली फीलिंग कि इन्होंने कभी भी किसी के साथ भी ऐसा बॉन्ड कभी फील नहीं किया जैसा इन्होंने आपके साथ किया है. आई एम सीइंग दैट स्ट्रांगली कि ये जो भी पर्सन है, इन्होंने कभी भी वो एहसास किसी के साथ फील ही नहीं किया. सो इसलिए वो आपके आप उनके लिए स्पेशल बन जाते हो सकता है ये एक ऐसे बैकग्राउंड, एज आई मैंशनड यू, ये एक ऐसे बैकग्राउंड से, एक ऐसे एरिया से बिलोंग करते हो जहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं हुई है. और यू आर अ वेरी डिफरेंट सोल, यू आर अ वेरी डिफरेंट इंडिविजुअल. और आप इनकी लाइफ में बहुत एक डिफरेंट माहौल लेके आए हो, एक डिफरेंट एनर्जी लेके आए हो. सो वो आपको एक यूनिकनेस में ले जाते हैं, इसलिए दे फील सो कनेक्टेड. आई फील दैट स्ट्रांगली कि यू आर अ वेरी यंग यूथफुल इंडिविजुअल और ये इंटरनली वैसे ही हैं, बट बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टेंसेस इन्होंने they are into like that strong coconut shell में. but I can see that strongly कि आप उनके वो inner child को explore करने में काफ़ी मदद करते हो. so yes, they are very unavailable. yes, they show they are a very unavailable person, but I feel that strongly they have so much to say to you. yes, they show, they definitely a person जो show करते होंगे कि they never notice something, और ये कुछ भी नहीं करते, and not like कुछ भी नहीं करते, but they never observe you, they never notice you, but they notice every single thing. And even like that way, temptation. So even also romantically, even also like that sensually, sexually basically. yes, and myself, I can feel so much of like shyness. जो shyness I think इनके अंदर है. there's so much of shyness I can feel. this person is from maybe government field से हो सकते हैं. और ये person ऐसे है कि हो सकता है कि इनकी family में like people are not so much romantically involved in things. वो ज़्यादा openly इन चीज़ों के बारे में बात ना करते हों. so उस वजह से भी they are like a little bit of shy. और जब इनका born like जब इनकी parenting हो रही हो, तो तब शायद
इन्होंने वो चीज़ देखी ही नहीं है, वो माहौल. सो दे आर अ लिटिल बिट ऑफ लाइक शाई गाय, अ पर्सन आई कैन सी दैट स्ट्रांगली. सो येस. So pile number 1, the person in their mind, true feelings. Or if this person is not romantically, so I can see that strongly this person observes you so deeply. So और आप इनके दिल को भा चुके हो, आप इनकी रूह को, आपका काम, आपका कार्य, आपकी आपकी उपस्थिति, आपकी आत्मा इनके कार्य को, आपको उनके दिल को भा चुकी है. एंड डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ी सी टेम्पटेशन है फॉर श्योर. सो वो एक चीज़ है. और जो भी हैं ये बहुत स्ट्रिक्ट दिखते होंगे, बहुत लाइक नॉट स्ट्रिक्ट तो अनरोमांटिक दिखते होंगे, बट दे आर वेरी रोमांटिक इंडिविजुअल. यस. सो वी हैव लिटिल बाय लिटिल. यस, दे ट्राई और धीरे धीरे दे विल ओपन टू यू. थोड़ा सा इनको हिम्मत जुटाने की ज़रूरत है. दे विल ओपन टू यू और धीरे धीरे ये ज़रूर अपने आप को ओपन करेंगे फॉर श्योर. टेक अ फील्ड ट्रिप. Yes, they really wanted to go out with you, go on dates, and ये कोशिश भी करते होंगे कि आप लोग जाओ. और अगर नहीं है तो उनको वो थोड़ी हिम्मत जुटाने की ज़रूरत है, बट दे रियली वांट कि आप लोग बाहर जाओ, आप लोग टाइम स्पेंड करो, वॉकिंग इन द पार्क, गोइंग ऑन दी डेट्स. और आप लोग लाइक छोटी ही डेट पे बट टाइम मोमेंट्स, स्मॉल मोमेंट्स को इंजॉय करो, स्मॉल मोमेंट्स को फील करो, एंड स्पेंड टाइम विद ईच अदर. आई कैन सी दैट स्ट्रांगली. सो ये वो चीज़ें चाहते हैं बाय देयर सेल्फ. सो पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 1. ओके, वी हैव डॉक्यूमेंट. हो सकता है आपके वर्क रिलेटेड एरिया से हों और ये दे ट्राई लाइक थ्रू देयर नेल्स और मे बी थ्रू देयर वर्क के थ्रू दे ट्राई कि आपके साथ ये टाइम स्पेंड करे. दे ट्राई कि ये अपना सारा टाइम आपको दें. दे लव टू स्पेंड टाइम विद यू. दे लव कि वो एक एनर्जी. येस, सो दे लव टू स्पेंड टाइम विद यू. आई कैन सी दैट स्ट्रांगली. और ये पूरी कोशिश करते होंगे कि आप लोग साथ में रहो. सो येस, looking closely, I told you they are a very good observer. They are very focused towards you. They are somebody जो बहुत पिकी हैं और ये बहुत लाइक दे आर नॉट समबडी जो बहुत जल्दी टेम्प्टेड हो जाते हैं, बहुत जल्दी रिलेशनशिप्स के बारे में सोचते हैं, रोमांटिकली इन्वॉल्व होते हैं, रोमांटिकली किसी को पसंद करते हैं और नॉन रोमांटिकली भी. बट आई कैन सी दैट स्ट्रांगली कि आप सच्ची इनके दिल को बहुत ज़्यादा भाए हो, डीपली बाय द कोर ऑफ देयर हार्ट आप इनके दिल को भाए हो. सो येस, सबकॉन्शियस माइंड. हो सकता है आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो. दैट्स वाई दे आर नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, बट स्टिल दे आर फीलिंग सो मच ऑफ सो मच फॉर यू. एंड ये हो सकता है पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो और आप इनके लाइक आई टोल्ड यू बाय सोल. सो सोल इज समथिंग, जब सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें जाएंगी तो सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी चीज़ें स्टोर्ड है. सो हो सकता है आप लोगों का बहुत पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो और उस वजह से भी आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हो. सो येस, आई लाइक यू. I told you, I like you, I love you. So I definitely seeing that strongly कि you people have that energy for each other. You people have that energy for each other. And you try to want to date. So yes. And they love to invest their time. And I feel that strongly they are not somebody जो अपने time को waste करने में believe करते हैं. They are a somebody जो बहुत ज़्यादा अपने time के they are a very I forgot that word, but like the जो अपने समय की बहुत वैल्यू करते हैं, जो अपने काम पंचुअल पर्सन. आई कैन सी दैट दे आर अ वेरी पंचुअल इंडिविजुअल और ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं कि अपने काम को साथ में करें. सो येस, स्पेंड टाइम टुगेदर इज समथिंग दे लव एंड मेकिंग एफर्ट टू गेट टू नो देम. ये अपना पूरा कोशिश करते हैं कि आपको जानने की कोशिश करें. आपको लगता होगा कि ये आपके बारे में नहीं सोचते या आपको नहीं ऑब्जर्व करते, बट नो माई लव, दे आर फोकसिंग अलॉट ऑन यू. दे आर लिटरली थिंकिंग अलॉट फॉर यू. सो येस, so much of things. They're a very shy individual. They never they will not show. I mean, I feel that masculine personality जो थोड़ी shy है, जो थोड़ी सी calm है, but I can see that strongly. ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए सोचते हैं. So yes, this is a so sweet energy. ये धीरे धीरे रिलेशनशिप को ग्रो होगी, नॉट वेरी क्विकली. यू विल सी विद टाइम कि कैसे. एंड येस, आई विल सी कि ये एक ऐसे इंडिविजुअल है जो एक बार किसी को पसंद करते हैं, दे विल नेवर लीव देयर हैंड. सो येस, इट्स वेरी गुड टू कंसिडर इफ़ यू वांट टू. So yes, so pile number 1, I hope you like this reading, you get it, informative, and आपको आपके messages मिल गए हों. So yes, if you like my content, please subscribe to my channel. मैं ऐसी videos डालती रहती हूँ. And yes, I will meet you in my another one.
Hello, pile number 2. If you like this video, then this is your reading. So, with all the positivity, with all the goodness, let's start your reading. So, yes, pile number 2, the person in their mind, उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, their current feelings, pile number 2, okay, pile number 2, their current feelings, and yes. Thank you, Spirit. So let's see. With all the positivity, let's start your reading. Okay. So we have the Six of Pentacles. I can see that the Six of Pentacles, this is a very mutual energy. जो भी आप उनके बारे में सोचते हो वो उनके लिटरली वो आपके बारे में सेम सोचते हैं. तो यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग एनर्जी फील हो रही है. आई एम सी दैट कि उनके करंट फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा गुड है, बहुत ज़्यादा जेन्युइन है. आई कैन सी दैट दे लव टू spend time with you. They love to make a good balanced relationship with you. I'm not seeing right now very romanticness, but हम आगे रीडिंग आगे उसको कवर अप करेंगे. बट आई कैन सी दैट स्ट्रांगली कि ये जो कनेक्शन है ये आगे कन्वर्ट बहुत अच्छे से एक रोमांटिकली हो सकता है. एंड आई कैन सी दैट स्ट्रांगली दिस पर्सन लव्स व्हेन यू थिंक अबाउट अदर पीपल्स, व्हेन यू थिंक अबाउट वर्ल्ड, थिंक अबाउट दैट all the charitable energies. They love that and they love spending time. आप उनके मन को बहुत ज़्यादा शांत कर देते हो, आप उनके मन को बहुत ज़्यादा हैप्पी कर देते हो. आई कैन सी दैट स्ट्रांगली. एंड विद द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स आई कैन सी स्ट्रांगली दिस पर्सन इज़ फ्रॉम योर, दिस माइट बी योर सोलमेट, और ये आपकी सोल फैमिली और सोलमेट भी हो सकते हैं. येस. And pile number 2, like this person has more respectable energy towards you. They love to spend time with you, and this person is somebody जो बहुत ज़्यादा they love to take care of you. आपके खर्चे उठाना इन्हें बहुत अच्छा लगता है. आपके आपकी सारी सहूलतें, आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाना इनको बहुत अच्छा लगता है. I am feeling that this connection is not too much romantic, but I can see that this person has like friendship वाली feeling towards you. And for some of you ये person already married हो सकते हैं, in relationship हो सकते हैं, and इनकी नज़र आपकी तरफ एक respectable है. This is not too much into relationship type of thing. I feel that strongly कि this person has a very genuine feelings, but not into so much of romantic energy side. So yes, definitely the person believes you are a very secure private person. They are not somebody जो बहुत ज़्यादा romantically आपकी तरफ आपको देखते हैं. उनकी current feelings बहुत ज़्यादा आपके लिए एक respectable person की है. They feels you are a very genuine, a good secret keeper, a good energy person जो आप उनको समझ सकते हैं, जो उनको समझा सकते हैं. A good guider also, but not more than that. I can see that. Yes, definitely they see you as a friend. They see you कि they love to spend time with you. They love कि आप लोग कहीं जाओ, you will spend time, you will create a good memories. But I don't feel that अगर आप इसको romantically देख रहे हो तो this might if you feel that this reading is for you, तो definitely इस person की ऐसी कोई feeling नहीं है. I am not saying कि this person shows any signs जो थोड़ा romantically हो. ये आपकी अपनी फीलिंग्स है, बट आई कैन सी दैट स्ट्रांगली कि ये पर्सन जो है ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा प्योरिटी एंड बहुत ज़्यादा जेन्युइन एक वेल विशर की तरह आपको देखते हैं. सो येस, द फूल कार्ड रियली शोज मी कि दिस पर्सन इज़ अ वेरी दे स्टार्टेड समथिंग न्यू इन देयर लाइफ. दे बिलीव्स कि आप एक बहुत ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हो. दे हैव दैट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू कि आप बहुत अच्छा विजन रखते हो फॉर फ्यूचर. यू आर अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन. यू आर अ पर्सन जो बहुत ज़्यादा अपने फाइनेंसेस के साथ सिक्योर्ड है, जो अपने फाइनेंसेस को बहुत ज़्यादा. दिस पर्सन माइट बी योर बॉस, दिस पर्सन माइट बी योर पेरेंट्स, ये वो भी हो सकते हैं. बट आई कैन सी दैट स्ट्रांगली दे आर समबडी जो बहुत नॉन रोमांटिक रिलेशनशिप में है आपके साथ ऑलरेडी. दे आर नॉट समबडी जो रिलेशनशिप में है. अब अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए देख रहे हो या अगर आप अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के लिए देख रहे हो, सो उनकी फीलिंग आपके लिए मोर देन जेन्युइन, मोर देन रिस्पेक्टफुल है रादर देन लव. आई कैन सी दैट दिस पर्सन, उनके दिमाग में आपके लिए इज्जत ज़्यादा है, आपके लिए दोस्ती ज़्यादा है, आपके लिए शुभकामनाएं ज़्यादा है. आई कैन सी दैट स्ट्रांगली. विद द फूल कार्ड वो आपको फ्री रखना चाहते हैं ज़िंदगी में. वो आपको कभी भी बाउंड नहीं करना चाहते किसी भी चीज़ में. अगर आप लोग कोई ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे यू पीपल कई बार होता है कि इन कलयुग पीपल आर इनटू रिलेशनशिप और वो एक दूसरे को बाउंड करने लग जाते हैं. वो एक दूसरे को
एक दूसरे को स्पेस नहीं देते. बट आई कैन सी दैट अगर आप ऑलरेडी अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के लिए, अपने स्पाउस के लिए देख रहे हो, तो वो आपको फ्री रखना चाहते हैं, वो आपको कोई भी बाउंडेशन में बांधना नहीं चाहते. बट आई कैन सी दैट स्ट्रांगली कि ऐसा अगर आप कोई अपने क्रश या कोई पर्सन कोई स्पेसिफिक पर्सन के लिए देख रहे हो, सो दे आर अ वेरी जेन्युइन फीलिंग्स टूवर्ड्स यू. डेफिनेटली आई कैन सी दैट दे हैव दैट काइंड ऑफ कमिटमेंट इशूज़. आई कैन सी दैट कि उनको कोई थोड़े से कमिटमेंट इशूज़ हैं, उनके पास में कुछ हुआ होगा, उसकी वजह से उनके थोड़े से कमिटमेंट इशूज़ भी मुझे क्लियर हो रहे हैं यहाँ पे विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स. एंड हो सकता है आपकी ही एनर्जी हो कि यू हैव दैट एनर्जी टूवर्ड्स यू, यू हैव दैट रोमांटिक एनर्जी टूवर्ड्स यू, बट उनकी ऐसी एनर्जी नहीं है. यू हैव ऑलरेडी दैट साइन. यूनिवर्स ने आपको वो साइन दिए होंगे, यूनिवर्स ने वो आपको एनर्जी दी होगी. बट आई फील दैट स्ट्रांगली इट्स टाइम टू एंड certain things in your life. It's time to end many things in your life. It's very important कि आप चीज़ों को end करो और अपनी लाइफ में आगे move on करो. सो बिकॉज ऑफ देयर पास्ट, बिकॉज ऑफ देयर समथिंग उनके खुद के कुछ इंटरनल बिलीफ सिस्टम्स ऐसे हैं, उसकी वजह से आई कैन सी दैट स्ट्रांगली दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन सर्टन थिंग्स वट यू आर थिंकिंग अबाउट. और ये आपके भी हो सकता है. सो आई एम सीइंग दैट दिस पर्सन वट एवर यू आर थिंकिंग अबाउट रोमांटिकली, दिस माइट बी नॉट योर पर्सन, दिस माइट बी नॉट समबडी जो अभी आपके लिए कुछ ऐसा सोच रहे हैं. बट आफ्टर अ लॉन्ग रन आई फील दैट यहाँ पे कुछ मिसकम्युनिकेशन, मिसगाइडेंस हो रही है. And after a long run I can see that things will be change maybe, but अभी ऐसा कुछ भी नहीं है currently उनके पास. So yes, right now they have no feelings. maybe आप अपने ex के लिए देख रहे हो, maybe हो सकता है आप अपने कोई क्रश के लिए देख रहे हो, but right now they have no such feelings towards you कि जो romantically involve हैं. और they have that feeling कि आप अगर आपने उनको कन्फेस कर रखा है, सो येस दे रियली एक्सपेक्ट यू टूवर्ड्स कि आप उस चीज़ को लेट गो करो, वरना आगे आपकी रिलेशनशिप में आपकी चीज़ों में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आएंगे, आपकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, आपकी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ज़रूर आएंगी. आई कैन सी दैट स्ट्रांगली. सो इट्स वेरी बेटर कि अगर आप इस चीज़ को, इस रिलेशनशिप को, यूनिवर्स कह रहे हैं कि इवन दिस पर्सन हायर सेल्फ कह रही है कि आप इसको अगर लेट गो करोगे, अगर आप इस पर मूव ऑन होगे, तब कोई नई बेटर चीज़ आएगी. सो ट्रस्ट द यूनिवर्स एंड दिस पर्सन ऑल्सो ट्रस्ट यू अलॉट, बट एज अ फ्रेंड, एज समथिंग एल्स. सो डेफिनेटली यू नीड टू end, you need to end off this person from your life. So it's very important कि आपको एक अगर आपको ये पर्सन चाहिए अपनी लाइफ में, तो डेफिनेटली यू कैन थिंक अबाउट दिस पर्सन एज अ डिफरेंट वे, बट नॉट रियली एज अ रोमांटिक वे. सो आई कैन सी दैट स्ट्रांगली आपकी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस ऑलरेडी हैं, आपकी रिलेशनशिप में ऑलरेडी बहुत सारे पॉजेस हैं. आई कैन फील दैट इन योर रीडिंग एंड आई कैन सी दैट दिस पर्सन माइट बी ऑल्सो ये कोई और पर्सन को पसंद करते हो, ये ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं एज आई मैंशनड यू बिफोर. बट आई डोंट सी अभी इनका जो भी फोकस है ये आपकी तरफ है, इनका फोकस कहीं और है. और ये चाहते हैं ऑल्सो, अभी इनके पास ना टाइम है, ना इनके पास अभी वो एनर्जी है टू इन्वेस्ट ऑन सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप और स्पेसिफिकली विद यू. So yes, I know this is a very brutal, this is not a very good thing, but I feel that strongly कि universe is really guiding you to end thing, and your right one is literally towards you. आपका जो right one है वो आप ही के पास है, आप ही के बहुत जल्द वो आपकी ज़िंदगी में आएंगे for sure. So yes, this is not a competition. आपकी लाइफ में जो भी person आएंगे, that will be the right one for you. एंड इफ़ यू सीइंग फॉर समबडी जो आपके लाइफ पार्टनर है और आपके अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के लिए, सो आई कैन सी दैट स्ट्रांगली कि दिस मे बी अ कार्मिक रिलेशनशिप. दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ सो मच सोलमेट और समथिंग एल्स. आई डोंट फील ये रोमांटिकली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट में है. दिस रिलेशनशिप हैव दैट डिफरेंट मीनिंग जो अभी आप सोच रहे हो. सो डेफिनेटली. So yes, the field trip, still meeting. I feel that strongly this person has meeting different peoples, and this person being the player. और हो सकता है ये person already, अगर आप इनके साथ relationship में हो, so ये already किसी और relationship में हो, ऐसा हो सकता है. So yes, they already a mingle. I told you, ये already mingle हैं, ये already कोई ऐसे person है जो they are into somebody else, they are into somebody, they love somebody else, or maybe they are already, I feel committed to somebody else. Definitely someone expressed their love, a message of love. So yes, I can see that ये थोड़ा सा love triangle बन रहा है जहाँ पे you love somebody और they love somebody else. I can see that strongly. So yes, बट दिस पर्सन इज़ अ वेरी जेन्युइन, जो आपको ऐसी मैसेजेस नहीं देते. ये आपका अपना इंटरनल बिलीफ सिस्टम है और कहीं ना कहीं ये आप ही जानते हो, और ये आपको प्रॉब्लम दे रहा है. आई कैन सी दैट स्ट्रांगली, आई कैन सी दैट स्ट्रांगली आपको प्रॉब्लम दे रहा है.
सो यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो एक्सेप्ट करो जो आपके लिए बेस्ट है. इट्स इंपॉर्टेंट टू लेट गो, एंड दिस पर्सन इज़ रॉन्ग फॉर श्योर. दिस पर्सन इज़ रॉन्ग. दिस इज़ नॉट समबडी जो आपके लिए बने हैं. ये मैं ये नहीं बोल रही कि ये गलत इंसान है, बट ये आपके लिए उस वे से नहीं बने जिस वे से आप इनको सोच रहे हो, फॉर श्योर. दैट्स वाई आई कैन सी दैट पाइल नंबर 2 आपके आपकी जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं. इवन यू कैन सी द कैमरा एंगल्स भी चेंज हो रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज ऑफ कि ये सेटलमेंट पे नहीं आ रही है. वट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस पर्सन इज़ नॉट रेडी टू गिव यू, एंड दिस पर्सन इज़ नॉट मेंट टू गिव यू दैट ऑल्सो. सो यू हैव टू ओपन, यू हैव टू, और ये बहुत क्लोज है आपके, आपको बस ट्रस्ट करने की ज़रूरत है. एंड एंड दिस एनर्जी, मूव ऑन इन दिस एनर्जी. एंड डेफिनेटली अगर आप इसको उस वे से देखोगे, so you will see कि this relationship will be toxic, this relationship will be negative. Okay, so yes, I know you are attracted so much, you will attracted so much like a you feel that addicted, you feel like कि आपके पूरे दिमाग पे, आपके पूरे दिल और दिमाग पे इन्होंने काबू कर रखा है. यू कांट एबल टू लेट गो दैट. आई कैन सी दैट आपकी एनर्जी बहुत इंटेंस है टूवर्ड्स देम. यू लव देम लाइक core of your heart, but your love is pure, your love is right, but not for this person. This love is meant for somebody else. This love is meant for somebody जो उसको deserve करते हैं, जो इनके लिए बने हैं basically. So yes. And the deal breaker, yes, you need to break this deal. You need to cut the cords from this person. You have to cut that energy basically. It's very important. And yes, you need to अपने you need to transform. आपको transform, आपको grow, आपको change, अपने mind को shift करना पड़ेगा. You have to do a new beginning. You can see यहाँ पे end आया और यहाँ पे new beginning आया. It's very important. And again 0 number and a 9 number. अभी आप यहाँ पे हो. It's time to reevaluate in this energy. You are this energy. Pile number 2, you need to reevaluate in this energy. It's very important. आपको इसको ख़त्म करना पड़ेगा, आपको इसको ख़त्म करना पड़ेगा. This person is not what you thinking. Your person is almost in the reach of your. So it's very important. I know this is a very, I don't know ये किसके साथ रेजोनेट करेंगी. दिस रीडिंग इज़ फॉर वेरी स्पेसिफिक पीपल्स जो अभी गलत रिलेशनशिप में हैं. एंड इफ़ यू हैव ऑलरेडी अ वेरी ग्रेट रिलेशनशिप तो हो सकता है दिस माइट डज नॉट रेजोनेट विद यू. ये बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए होगी. एंड एवरी रीडिंग इज़ फॉर स्पेसिफिक पीपल्स. बट येस, दिस इज़ अ वेरी क्लियर एनर्जी. आपके स्पिरिट्स भी कह रहे हैं बी क्लियर व्हाट यू वांट. ये बहुत चैलेंजेबल एनर्जी. आई नो दिस पार्ट ऑफ योर लाइफ विल चेंज यू अलॉट एंड मेक्स यू अ वेरी वर्थफुल पर्सन फॉर somebody else, not for this person. So yes, so pile number 2, I hope you like this reading. I hope you get your messages and be clear. आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मायने रखती है एंड आपको वो मिलना चाहिए जो आप आप डिज़र्व करते हो. आपको ये बात समझनी पड़ेगी. एंड यूनिवर्स विल नेवर गिव यू समथिंग रॉन्ग, सो डोंट एक्सपेक्ट रॉन्ग फ्रॉम यूनिवर्स ऑल्सो. एंड येस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल. मैं ऐसा कॉन्टेंट डालती रहती हूँ. एंड येस, आई विल मीट यू इन माई अनदर वन. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. Hello pile number 3, I hope you are doing great. If you choose this picture, then this is your reading. So let's start with your reading. Pile number 3, spirit guides, please connect with me. Pile number 3, spirit guides, please connect with me. Pile number 3, spirit guides, please connect with me. Pile number 3, spirit guides, please connect with me. Okay, so pile number 3, okay, we have the temperance card. I can see whatever the person you are thinking about, they have a very pure, very like ये जो भी connection है, this is meant in your stars, this meant in your destiny. ये connection कोई coincidence नहीं है. This connection is not something जो like आपने बनाया जो आपके लिए, but आपने बनाया but ये आपके लिए है for sure. You people, जो भी person है, ये आपका और उनका cup is destined in stars. It's destined in universe. It's destined in something else. आप दो different souls हो जो साथ में यूनिवर्स ने जोड़ी है बेसिकली. एंड सबकॉन्शियसली कॉन्शियसली दैट कि दिस पर्सन इज़ मेंट फॉर यू, दिस पर्सन इज़ समथिंग एल्स. यू पीपल हैव दैट जेन्युइन कनेक्शन. और ये पर्सन को भी ये फील होता है इंटरनली कि यू पीपल हैव दैट डिफरेंट इंटेंस कनेक्शन जो लोगों के बीच में नहीं है बेसिकली. आई कैन स्ट्रांगली सी दैट कि दिस पर्सन जो भी हैं इनको इंटरनली आपके लिए कुछ और फील होता है, बट आउटरली इनके पास बहुत ज़्यादा लाइक दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय वर्ल्ड बेसिकली, बट इंटरनली दे नो दैट कि समथिंग इज़ एल्स फॉर यू. और बिकॉज ऑफ आउटर इन्फ्लुएंस समटाइम्स दे स्पीक समथिंग एल्स टू यू जो ये जेन्युइनली फील नहीं करते आपके लिए. सो येस, लेट्स पुल ऑल द कार्ड्स देन वी विल सी. वी हैव 8 of wands, okay, we have 6 of swords,
Okay, we can see the sixth number is judgment. Oh my gosh, I can see that strongly you people are meant for you. Divine timing पे सही समय पे आप लोगों ने साथ में आना ही आना है for sure. आप चाहे जो कुछ भी कर लो, ये पर्सन कुछ भी कर ले, आपने आना ही है. इनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा प्योर है. They love to spend time with you. They love to go adventurous trips with you. I feel that they have that romantic connection towards you. Also sometimes they have that dual energy कि whether this ये मैं सिर्फ अपने अंदर ही सोच रहा हूँ, ये सब delusional है या ये reality में है भी. But for sure with the judgment card ये आपके destined है, ये आपके stars में, ये आपकी भाग्य में लिखा है. ये connection इनको भी heal करेगा और ये connection आपको भी heal करेगा. You people are meant for each other. Yes, you will definitely transform each other. You will definitely change each other. आप दोनों एक दूसरे के भाग्य को बदलने के लिए आए हो, आप एक दूसरे के भाग्य को ग्रो करने के लिए आए हो फॉर श्योर. एंड आई कैन सी दैट विद द 8 ऑफ wands की यू पीपल डेफिनेटली कम टुगेदर. विद द 8 ऑफ wands सही समय पे आप लोग ऐसे एक साथ आओगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा. यू विल फील कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी लाइक इवन दिस पर्सन ऑल्सो सीज कि कितने सारे साइन सिंक्रोनिसिटीज़ होती है. ये आपके बारे में बहुत कुछ सोचते हैं और सडनली ये आपके बारे में सोचते हैं एंड आप उनकी लाइफ में आप एकदम से आ जाते हो, या ये कहीं जाते हैं तो इनको बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपकी याद दिलाती है. सो आई कैन सी दैट यू आर 24/7 इन देयर हेड. लाइक विद द जजमेंट कार्ड आपने इनके बहुत सारी चीज़ों को हील किया है. जब से आप इनके साथ रहते हो ये खुश रहने लग गए हैं. लाइक दैट सॉन्ग कुछ तो हुआ है ऑफ कल हो ना हो, दैट्स चैनलिंग फॉर यू. लाइक कि when Naina enters in Aman's life, not Aman but that Saif Ali Khan's life, so वो कैसे he start feeling happy. and जैसे नैना आती है उसके अमन की लाइफ में, नॉट अमन आता है नैना की लाइफ में, वो कैसे अलाइव हो जाती है. सो डेफिनेटली लाइक आई कैन फील दैट कि आप एकदम से एक्टिवेट हो जाते हो. सेकेंडली आई कैन फील ऑल्सो लाइक अ गीत एंड आदित्य ऑफ जफरीमेंट. लाइक कैसे गीत आदित्य की लाइफ में आती है एंड वो सब कुछ हील होने लग जाता है. सो आई कैन सी दैट स्ट्रांगली यू पीपल आर वेरी डिफरेंट बट आप उनके लाइफ में आके बहुत ज़्यादा हीलिंग जनरेट करने लग गए हो. विद द 6 ऑफ swords आई कैन सी दैट स्ट्रांगली दे थिंक अ लॉट अबाउट यू, दे थिंक अ लॉट 24/7 अबाउट यू. ये बहुत ज़्यादा लाइक लिटिल बिट ऑफ पोजेसिव भी हैं आपके लिए, थोड़े कंसर्न भी हैं और ये बहुत कोशिश करते हैं कि आप इनके साथ खुश रहें. दे आर वेरी दे हैव दैट फीलिंग टूवर्ड्स यू कि आप बहुत इनोसेंट हो, जैसे आप थोड़े शैतान हो, आप थोड़े से लाइक रेबेलियस हो, बट यू are a very sweet individual. I can see that strongly. And yes, you love to you are a very spontaneous person also, and they love आप जब खुश रहते हो, आप खिले रहते हो और आप जब ओपन रहती हो. Yes, they have that emotional and very comfortable energy towards you strongly. And आप लोगों का past life connection भी हो सकता है with 6 ऑफ कप्स. एंड हो सकता है आप उनको बचपन की याद दिलाते हो, आप उनको अपने बचपन की, अपने लाइक इनर चाइल्ड को अलाइव करने की याद दिलाते हो. सो ये दे लव टू टाइम स्पेंड विद यू. इनको बहुत अच्छा लगता है अगर आप उनके साथ हो. येस आई नो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस आ रही हैं होंगी आपके रिलेशनशिप में. आई फील दैट स्ट्रांगली कि दिस पर्सन हैज़ दैट ड्यूअल एनर्जी जहाँ पे समटाइम्स दे फील कि लाइफ इज़ टू प्रैक्टिकल बट समटाइम्स यू मेक देयर लाइफ सो मच ऑफ मैजिकल मिस्टिकल एंड सो इम्प्रैक्टिकल. लाइक दैट गोलमाल 3 का डायलॉग कि जब गॉड का मैजिक होता है तो लॉजिक नहीं चलता, सिर्फ मैजिक होता है. नहीं, जब गॉड की मर्जी चलती है तब लॉजिक नहीं चलता, मैजिक चलता है. डेफिनेटली जब आप इनकी लाइफ में आते हो सो कोई लॉजिक वर्क नहीं करता, जो ये सोचते हैं सब मैजिकली हो जाता है. एंड यू ब्लेंड द मैजिक एंड द लॉजिक वेरी ब्यूटिफुली इन देयर लाइफ विच दे लव अ लॉट. सो यस, आपकी वजह से ये दे स्टार्टेड फोकसिंग ऑन स्मॉल थिंग्स, लिटिल थिंग्स अपनी लाइफ की. दे लव टू सेलिब्रेट अब वो छोटे छोटे मोमेंट्स भी जो आपके साथ हैं और उसके बारे में पूरा दिन सोचते रहते हैं. येस, आई एम कनेक्टेड विद अर्थ. आई फील दैट दे बिफोर कमिंग एंटरिंग इन योर लाइफ, आप उनकी लाइफ में आने से पहले दे आर समबडी जो बहुत ज़्यादा दे डोंट हैव इंटरेस्ट इन वर्ल्ड, बट आफ्टर जब आप इनकी लाइफ में आए दे हैव दैट पॉजिटिविटी ऑल ओवर द वर्ल्ड. आप उनकी लाइफ पहले ब्लैक एंड वाइट थी बट आफ्टर व्हेन यू कम इन योर देयर लाइफ दे स्टार्टेड फीलिंग कि उनकी लाइफ में कलर्स आने लग गए, इनकी लाइफ में एक वो जॉय आने लग गया. फॉर सम ऑफ यू ये फ्रेंडशिप में भी कन्वर्ट हो सकता है, बट फॉर सम ऑफ यू ये एक रोमांटिक रिलेशनशिप में भी कन्वर्ट हो सकता है बहुत डीपली. सो वॉट एवर दिस रिलेशनशिप इज, इट्स डिस्टाइंड इन स्टार्स फॉर श्योर, इट्स डिस्टाइंड इन स्टार्स. येस, आई फील दैट स्ट्रांगली कि ये फील करते हैं कि वो चैलेंजेस हैं. आई एम सो सॉरी, इवन यू कैन हियर कि मेरे बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा भी नॉइजेस आ रही हैं बिकॉज ऑफ आउटर क्राउड, बट ये भी फील कर पा रहे हैं कि वो भी फील कर पा रहे होंगे कि बिकॉज ऑफ लाइक आउटर थिंग्स उनकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस अभी आ रहे हैं. फॉर सम ऑफ यू इनका चाइल्डहुड और इनका पास्ट थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है एंड इसलिए थोड़ा सा
they also feel hesitated towards this relationship, but I can see that ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत ज़्यादा admire, they love to admire you, they love to watching you, they love to think about you, they love to always take care of you. आपको देखना, आपको तकते रहना इनको बहुत अच्छा लगता है. I can see that strongly. इनको वो एक healing energy feel होती है, उनको वो positivity feel होती है. They also wanted to become like you. Like you have to see that जब वी मेट movie. You can see जब वी मेट, you can see कल हो ना हो. उसमें देख सकते हो अमन का कैरेक्टर और गीत का कैरेक्टर कितना ऑप्टिमिस्टिक होता है, एंड वही ऑप्टिमिज्म आप उनकी लाइफ में लेके आ रहे हो बेसिकली. सो यस दे फील रिग्रेटफुल कि ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, बिकॉज ये ऐसे थे नहीं, और बिकॉज ऑफ सोसाइटी इन्फ्लुएंस, और ये जब लॉजिकल बन जाते हैं ये विल सी कि ये ऐसा कुछ भी नहीं होता. सो दे फील रिग्रेटफुल वेन एवर दे कम टूवर्ड्स यू. बट मोर देन दैट, अगर इनको थोड़ा सा ये यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होंगे, दे विल डेफिनेटली एबल टू गेट दैट. सो अभी इनके माइंड में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है बिकॉज ऑफ वर्ल्ड रूम, बिकॉज ऑफ आउटर इन्फ्लुएंस इनके दिमाग में थोड़ा सा है. बट आई फील दैट स्ट्रांगली दे आर अ लिटिल बिट ऑफ एडिक्टिव टूवर्ड्स यू. दे हैव दैट एडिक्शन टूवर्ड्स दैट that bond which you are creating together, the bond which you are literally having together. I can see that strongly. I know I am speaking so quickly because इनके दिमाग में एक साथ आपके लिए ही 100 थॉट्स चलते होंगे. दे आर अ बिट ओवर थिंकर, आई कैन सी दैट स्ट्रांगली. बट ये बहुत कुछ बोलना चाहते हैं बट ये बोल नहीं पाते, और ये कई बार बफर कर जाते हैं, और आपको भी लगता होगा कि कभी ये कुछ और बोलते हैं, कभी कुछ और बोलते हैं. सो इनके वर्ड्स इन्हीं के लाइक फीलिंग्स के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते होंगे. आई कैन सी दैट स्ट्रांगली. So pile number 3, the person in their mind, feelings. ओके एंड यस, इनके ना दिमाग में बहुत ज़्यादा शोर है इस वक्त इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा शोर है. सो आपके लिए इतना नहीं सोच पा रहे अभी. हो सकता है ये अपनी लाइफ के उस स्टेज पे हो जहाँ पे इनको बहुत कुछ अभी अचीव करना है, बहुत कुछ ये सोच रहे हों, और उस वजह से ये अभी आपके लिए उतना ये उस रिलेशनशिप के बारे में सोच ना पा रहे हो. बट यस, देयर आर मल्टीपल थिंग्स. ये चाहते हैं कि आप उनके साथ रहो, ये चाहते हैं कि अगर ये आपके एक्स भी हैं, अगर ये कोई ऐसे पर्सन भी है जिनके साथ आपका यू पीपल लाइक उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया और आपका ब्रेकअप हो गया, बट ये चाहते हैं कि यू पीपल बैक टुगेदर. आप वापस उन चीज़ों में आओ, जो आप वापस उनकी ज़िंदगी में आओ, आप वापस उन यू पीपल क्रिएट दोज मेमोरीज जो उन्होंने थोड़ी सी अपने लॉजिकल माइंड से ख़राब कर दी है. सो यस आई नो दैट दिस पर्सन इन पास्ट विद कूल विद, ये शो ऐसा करते होंगे कि दे आर कूल विद वट एवर दे आर डूइंग, बट दिस इज़ नॉट वट इज़ ट्रू. दे आर शोइंग, ये शो करते होंगे कि ये बहुत कैजुअल है और इनको कमिटमेंट में नहीं आना, बट दे रियली वांटेड टू कम दैट. यस, कई बार इनको इनके वो ट्रिगर्स हैं, इनके अंदर वो एक बिलीफ सिस्टम रॉन्ग है थोड़े से, जो इनको एकदम से कर देता है ख़राब. आई कैन सी दैट स्ट्रांगली. फिंगर पॉइंटिंग. ओके, सो आई फील दैट आपका थोड़ा सा टॉम एंड जेरी रिलेशनशिप भी हो सकता है अभी, जहाँ पे समटाइम्स यू पीपल कम, समटाइम्स यू पीपल गो बैक. तो थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो सकते हैं. बट येस, आई सी दैट दिस रिलेशनशिप इज़ वेरी प्योर. आप लोगों को अभी समझ नहीं आ रहा कि ये प्योरिटी क्या है, बट यूनिवर्स इज सेइंग यू कि दिस इज़ सो प्योर. यू नीड टू रियलाइज़ कि आप लोगों यू पीपल आर रियली मेंट फॉर यू, एंड वो डिवाइन टाइमिंग पे खुद ही अनकवर हो जाएगा, वो डिवाइन टाइमिंग पे खुद ही समझ आ जाएगा आप लोगों को फॉर श्योर. एंड यस, यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कि you are right now experiencing that human consciousness, but when you connect with soul consciousness you will able to understand, और ये वो भी फील करेंगे जब वो डिवाइन टाइमिंग आ जाएगा. बट या यू विल मेंट टू बी. अभी आपकी लाइफ में हो सकता है उनकी लाइफ में भी ऐसे स्नेक्स हों जो आप उनको ट्रिगर कर रहे हो, जो उनको रॉन्ग इन्फ्लुएंस कर रहे हो अपनी लाइफ में, उनकी लाइफ में, और उनको इस कनेक्शन के प्रति गलत गाइडेंस दे रहे हो फॉर श्योर. एंड आई कैन सी विद एक्सपेक्टेशन कि वो आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो आपसे बहुत ज़्यादा आप उनकी प्रियोरिटी हो रिलेशनशिप में. आई कैन सी दैट स्ट्रांगली. So yes, but yes, because of the past, because of some things, I feel that ये बचपन का कोई past हो सकता है, ये उनकी लाइफ के कोई bad moments हो सकते हैं जिससे ही वो निकले हों, उसकी वजह से they really have that trigger pointing issues. But I feel that strongly कि आप लोग ये बात करके वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपसे email बात करना चाहते हैं, और वो चीज़ें clear करना चाहते हैं वो basically. So yes, and Serene, you are very attractive. I feel that strongly कि they are very attracted towards you. They are very like mysterious person, and yes, they show ki abhi they try to show ki that mysteriousm,
बट यू आर समबडी जो उनके आसपास भी रहते हैं ना, सो दे रियली हैव दैट, उनको खुद पे कंट्रोल नहीं रहता, उनको बस आप ही की धुन में घूम जाना होता है, उनको वो समझ ही नहीं आता कि वो क्या कर रहे हैं, वो कौन से स्टेट ऑफ माइंड में, वो एकदम से आप उनके स्टेट ऑफ माइंड को शिफ्ट कर देते हो। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स से आप उनके स्टेट ऑफ माइंड को 6 ऑफ कप्स में ले जाते हो। कैन यू सी दैट? इट्स अ वेरी डिफरेंट, बट आई कैन सी दैट विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की कहीं ना कहीं उनके पास्ट में ऐसी चीज़ें हुई हैं जो उनको ट्रिगर करती है, और वो आप उनको हील भी करते हो। बट येस, बिकॉज ऑफ दैट ह्यूमन कॉन्शियसनेस, वो ह्यूमन कॉन्शियसनेस की वजह से वो उस चीज़ को अभी समझ नहीं पा रहे, वो उस चीज़ को अभी अच्छे से गेट नहीं कर पा रहे। बट आई कैन सी दैट स्ट्रांगली कि जब वो समझेंगे, सो थिंग्स विल बी वेरी चेंज। एंड आई कैन सी दैट विद टाइम, विद द ट्रस्ट द टाइम, ट्रस्ट द प्रोसेस के बाद यू विल सी कि चीज़ें इज़ चेंजिंग। सो यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस, यू हैव टू ट्रस्ट द एनर्जी बेसिकली। अगर आप ये कनेक्शन चाहते हो तो दिस कनेक्शन हैज़ पोटेंशियल, दिस पर्सन ऑल्सो थिंकिंग अबाउट यू अलॉट, दिस पर्सन हैज़ दैट इंटेंस इमर्ज एनर्जी टूवर्ड्स यू। आई कैन सी दैट स्ट्रांगली, एंड आई कैन फील स्ट्रांगली कि दे लव टू स्पेंड टाइम टूवर्ड्स यू, दे लव टू स्पेंड एनर्जी टूवर्ड्स यू। आप उनकी लाइफ में वो एक फ्लावर हो, एक लाइट हो, एक सनलाइट हो जो सब कुछ बदल देती है बेसिकली, विच इज़ सो प्योर, विच इज़ सो जेन्युइन। आई कैन सी दैट स्ट्रांगली, यस। एंड आई फील कि ये अभी जो भी चल रहा है इट्स अ टेम्प्ररी, आपकी लाइफ में जो भी ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं, अगर प्रॉब्लम्स चल भी रही हैं तो इट्स टेम्प्ररी। तो यस, दिस इज़ अ स्वीट कनेक्शन, अभी एक फेज़ में है, बट ये फेज़ टल जाएगा एक टाइम पे, और दिस विल डेफिनेटली हील दिस एनर्जी। सो यस, पाइल नंबर 3, आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। आई नो दिस इज़ अ शॉर्ट क्रिस्प एनर्जी, बट आई फील दैट स्पिरिट ने आपको भी यही बताने की ज़रूरत है। एंड यस, if you like this my content, you can subscribe to my channel. मैं ऐसे content डालती रहती हूँ. Yes, and yes, I will meet you in my another reading. Take care.